Good morning, students. I am Khyati Patel from Ashwamek Vidyalaya. Today we are going to start with first chapter heading Introduction to Multimedia. Communication is very important part of our life. We use the various means of communication, for example, radio, newspaper, television, internet, etc. With the help of the communication, we communicate with different types of people and we transform our message to one person to another. Here in this chapter, we are going to start with chapter multimedia. So, first of all, we have to learn what is multimedia. The definition of multimedia is the term multimedia has been coined from two terms. The multimedia is a combination of two terms, multiple and medias. Multiple and medias. Hence, we can see that multimedia means usage of multiple medias to communicate. Multimedia means usage of multiple media to communicate. Now, for communication, we use the different types of media, multiple media, then we can say that it is multimedia. In other words, we can also see that multimedia is a combination of different media elements like text, audio, graphics, video, and animation. Combination of all these media elements are known as multimedia. Here we have given components of different types of multimedia. There are most 5 components of multimedia. First one is text, audio, video, graphics, and animation. Text, audio, video, graphics, and animation. In the textbook, these all elements are covered with an figure. This is multimedia, text, audio, graphics, video, and animation. So we can say that it is all the components of your multimedia. So now we are going to learn this all media in detail. So the first media is your text. Text means the basic step of multimedia is text. The purpose of text in multimedia is to represent and which is help to communicate the ideas and message to the others. Text can be of any type. It is a word, it is a single line, or it is a paragraph. So the text have the different types. The text have different size, color and style. ओके टेक्स्ट को आप लोग डिफरेंट टाइप हो सकती है, साइज हो सकती है, कलर हो सकता है और स्टाइल हो सकती है, ऐसा बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बुक के अंदर टेक्स्ट का एक सैम्पल दिखाया गया है. यहाँ पे देखो, ये जो टेक्स्ट आपको बताई गई है ये टेक्स्ट की डिफरेंट साइज है, डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट एंड कलर्स है और डिफरेंट शेप्स है. अब नेक्स्ट ये टेक्स्ट के रिलेटेड टर्म है टाइप फेस. नेक्स्ट ये टेक्स्ट के रिलेटेड टर्म है टाइप फेस. टाइप फेस इज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टर और लेटर विच हैव सिमिलर लुक. अगर आप लोगों ने अभी बताई गई टेक्स्ट देखी होगी तो उसका लुक सिमिलर है. वो फैमिली ऑफ कैरेक्टर है, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर वहाँ पे यूज़ हुए हैं लेकिन उसका लुक कैसा है, सिमिलर दिखता है. एग्जाम्पल आप लोग उसके टाइप में देखते हो तो वहाँ पे टाइम्स आता है, एरियल आता है, कुरियल आता है, एक्सेट्रा. ठीक है. अब यहाँ पे टाइप फेस हैव द डिफरेंट स्टाइल एंड साइज नोन एज फॉन्ट. टाइप फेस की क्या होती है, डिफरेंट स्टाइल होती है एंड डिफरेंट साइज होती है और इसे आप लोग फॉन्ट बोलते हो. स्टाइल्स आर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो हम लोग करते हैं वो है. और साइज क्या होती है, तो साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द लेटर टू द बॉटम पॉइंट. मतलब साइज क्या है, तो ये डिस्टेंस होता है टॉप ऑफ द लेटर और बॉटम, मतलब लेटर के टॉप और बॉटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइज. एंड साइज इज एक्सप्रेस्ड इन
पॉइंट यूनिट। साइज किस में मेज़र की जाती है? पॉइंट के अंदर। तो अगर हम लोग किसी फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल देते हैं और उसकी साइज़ 12 करते हैं तो हम लोग उसे ऐसा बोलेंगे कि उसकी स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन है और वो 12 पॉइंट के अंदर है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टाइप फेस है वो टाइप फेस इज categorized into two types. Typeface is divided into two types. First type is known as your serif. First type is known as serif, and second one is known as sans serif. First type is known as serif and second one is known as sans serif. Serif font is a little decoration at the end of the character. Means we can say that it is a decorative font. It is a decorative font. Or sans serif font are without the decoration. sans का मतलब होता है without, और ये sans serif means विदाउट डेकोरेशन। मतलब हम लोग फॉन्ट के एंडिंग के अंदर कुछ डेकोरेशन नहीं करते हैं तो वो sans serif कहलाते हैं। ये serif फॉन्ट मतलब डेकोरेशन एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर एंड sans serif मीन्स विदाउट द डेकोरेशन। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये serif फॉन्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका नेम्स है टाइम, सेंचुरी एंड बुकमैन। ये आपके सेरिफ फॉन्ट के एग्जाम्पल है। वैसे ही अगर sans serif फॉन्ट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है एरियल, वर्दाना एंड हेल्वेटिका। ये आपके sans serif फॉन्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों का जो डिफरेंस है ये टेक्स्ट बुक के अंदर एक फिगर के अंदर समझाया है। यहाँ पे देखो ये आपके सेरिफ फॉन्ट है। यहाँ पे देखो कैरेक्टर के एंड के अंदर कुछ डेकोरेशन किया गया है। मीन्स द डेकोरेशन एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर। तो ये आपके सेरिफ फॉन्ट है। और विदाउट डेकोरेशन ये फॉन्ट के अंदर नीचे कोई भी डेकोरेशन नहीं किया गया है। तो ये कैसे रहेंगे? विदाउट डेकोरेशन मीन्स आपके sans serif फॉन्ट रहेंगे। ठीक है। तो ये है आपका टेक्स्ट। अब टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट यूज इन ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर मेथड। जो हम लोग मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो हम लोगों की ट्रेडिशनल वे से डिफरेंट है। ऐसे ही टेक्स्ट अगर आपको आपके मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ करने हैं तो हम लोगों ने जो 9th स्टैंडर्ड के अंदर इम्प्रेस सॉफ्टवेयर देखा था वहाँ पे हम लोगों ने जो आपके वर्डआर्ट के जैसा सिमिलर आता है तो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये फॉन्ट वर्क की गैलरी मिलती है। ये फॉन्ट वर्क की गैलरी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें से आप लोगों को जो पसंद है वो फॉन्ट वर्क ले लेना है आपको, और बाद में आप लोगों को वहाँ पे ऐसे जो भी टाइप करना है, जो भी लिखना है वो आपको ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो इम्प्रेस ही है, जिसके अंदर आप लोग ऐसे फॉन्ट को डेकोरेटिव बना सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सेकेंड आपका मल्टीमीडिया एलिमेंट, मल्टीमीडिया कंपोनेंट रहेगा और उस कंपोनेंट का नेम है ऑडियो। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका ऑडियो। वी कैन से दैट साउंड ऑल्सो। सो द साउंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। वी कैन डिफाइंड साउंड एज अ मीनिंगफुल स्पीच। साउंड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज़ अ मीनिंगफुल स्पीच इन एनी लैंग्वेज। Sound or audio both are same. It is a meaningful speech in any language. The term sound is used in analog form. The term sound is used in analog form, or the term audio is used in डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में इसको ऑडियो बोला जाता है और एनालॉग फॉर्म में इसको साउंड बोला जाता है। अब
Text or images without any sound are helpful when we are presenting the information in front of the audience. ठीक है, जब आप लोग किसी ऑडियंस के सामने आपका प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब आपके टेक्स्ट और इमेजेस वहाँ पे आपको ऑडियंस के विदाउट में दे रहे हो तब आपका टेक्स्ट और इमेजेस आपके वहाँ पे बहुत नेसेसरी है. ठीक है, साउंड. बट अगर आप लोग आपका प्रेजेंटेशन एब्सेंस ऑफ ऑडियंस के दे रहे हो, ऑडियंस के एब्सेंस में दे रहे हो, तो वहाँ पे साउंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन ऑडियंस के सामने दे रहे हो या तो ऑडियंस के बिना दे रहे हो, उसके ऊपर आपकी ये साउंड आपका डिफाइन होता है. फिर यहाँ पे आपको बुक के अंदर साउंड को रिकॉर्ड कैसे करती है वो एक छोटे से स्क्रीन के अंदर दिखाया गया है, लेकिन ये आपको कुछ करना नहीं है. और आप लोगों को फ़ोन के अंदर साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा. ठीक है, तो ये साउंड रिकॉर्ड करने की प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है. नेक्स्ट आपको बुक के अंदर ये ऑडियो फाइल के एक्सटेंशंस दिखाए गए हैं. ये एक्सटेंशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. ये एक्सटेंशन है फाइल का, ये फाइल का टाइप है और ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन से टाइप की फ़ाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ होगा. जैसे कि हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं कि सभी फाइल को कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगता है, वैसे अगर इस टाइप की ऑडियो फाइल रहेगी तो उसका एक्सटेंशन क्या लगेगा. तो सबसे पहली फर्स्ट MIDI फाइल रहेगी तो उसका एक्सटेंशन .MID या तो .MIDI रहेगा. इसका फुल फॉर्म है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. सेकंड, अगर आपकी रियल ऑडियो फाइल रहेगी तो उसका एक्सटेंशन रहेगा .RM या तो .RAM. थर्ड, आपकी वेव फाइल है तो उसका एक्सटेंशन रहेगा .WAV. नेक्स्ट, आपकी विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन विंडोज़ का W, मीडिया का M और ऑडियो का A .WMA. नेक्स्ट, अगर आपकी MP3 ऑडियो फाइल रहेगी तो उसका एक्सटेंशन .MP3 या तो .MPGA रहेगा. तो ये है आपके नेक्स्ट टॉपिक ऑडियो के बारे में. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, इमेज. नेक्स्ट आपका एलिमेंट है जो हम लोगों ने वहाँ पे ग्राफिक्स देखा. तो ग्राफिक्स इट इज़ वन टाइप ऑफ इमेज. तो जनरली मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशंस आर बेस्ड ऑन ग्राफिक्स और इमेज. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू इमेजेस इज ईजियर टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. जो हम लोग इमेज के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करते हैं वो याद रखने के लिए और समझने के लिए बहुत आसान होती है. कैसे? तो अगर हम लोग 1 घंटे का लेक्चर 1 आवर का लेक्चर आपको देते हैं और बाद में आपको बोलते हैं कि ये पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया वो आपको अभी वापस से बताना है, तो शायद से ये आप सबके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा. लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग आपको 1 आवर की मूवी दिखाते हैं, ठीक है, और बाद में आपको पूछते हैं कि इस 1 आवर की मूवी के अंदर क्या था, तो आप लोग पूरा डिटेल के अंदर उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाते हो. इसका मतलब क्या है, वो पूरी चीज़ को आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आया, सारी चीज़ को इमेजेस के फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले किया गया, जिसकी वजह से आप लोगों को वो समझने के लिए और याद रहने के लिए इजी हो गई. वैसे ही अगर हम लोग इमेजेस के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वो चीज़ आपको याद रखने के लिए और समझने के लिए ईजी हो जाती है. ठीक है, अब इमेजेस यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कैन बी अ फोटोग्राफ्स एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर के थ्रू हम लोग इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये कंप्यूटर जो आपकी इमेजेस या तो पिक्चर्स स्टोर करता है, वो कंप्यूटर स्टोर द पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल. कंप्यूटर स्टोर द इमेजेस और पिक्सल इन द इमेजेस और आपका फोटोग्राफ्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल known as bitmap और raster.
इमेज, बिटमैप और रास्टर इमेज। ये पिक्सल क्या है वो हम लोग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अ पिक्सल इज अ स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आया हुआ स्मॉल डॉट है, इसे आप लोग क्या बोलोगे, पिक्सल बोलोगे। और इसका पूरा नेम क्या है, पिक्चर एलिमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पिक्सल बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नेम पिक्चर एलिमेंट है। और मैप क्या है, मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स डॉट का उसे आप लोग मैप बोलती हो, ठीक है। तो ऐसे आपके ये पिक्सल, ये मैप और पिक्सल से आपकी कंप्यूटर के अंदर इमेज डिस्प्ले होती है। The another form of image generated by the computer is vector graphics. The another form of image generated on the computer is vector graphics. They store the images in the form of vector graphics, store the images in the form of mathematical equations. They store the images in the form of mathematical equation. Both the image, whether it is a bitmap image or it is a vector graphic image, it look like the same on the screen. दोनों इमेज स्क्रीन पे सेम दिखती है, बट when you enlarge the bitmap image it will get blur. जब आप लोग ये bitmap इमेज को एनलार्ज करते हो, बड़ी करते हो, तो वो ब्लर हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से आपको वो क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक के अंदर इसी चीज़ को दिखाया है। ये आपकी बिटमैप इमेज है, जहाँ पे ये इमेज आपको अच्छे से दिख रही है। और ये बिटमैप इमेज को जब हम लोग एनलार्ज करते हैं, बड़ी करते हैं, तो वो इमेज क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पिक्सल है वो पिक्सल वहाँ पे ब्लर हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन देखे थे, वैसे ही यहाँ पे ये आपकी इमेज फाइल के एक्सटेंशन है। बिटमैप इमेज के लिए एक्सटेंशन रहेगा .bmp। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल, G मीन्स ग्राफिकल, I मीन्स इंटरचेंज और F मीन्स फॉर्मेट, उसका एक्सटेंशन .gif। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के लिए एक्सटेंशन .png। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG या तो JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल का एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के लिए एक्सटेंशन रहेगा .pst और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट के लिए एक्सटेंशन रहेगा .tif। तो ये एक्सटेंशन भी आपको अच्छे से समझना है। और इसका लास्ट कंपोनेंट है आपका वीडियो एंड एनिमेशन। वीडियो एंड एनिमेशन, ये दोनों वर्ड आपको दिखने में सेम लगते हैं। वीडियो और एनिमेशन दोनों एक ही चीज़ लगती है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ नहीं लगती है, ठीक है। अब ये एनिमेशन के थ्रू आप लोग किसी भी चीज़ के अंदर आपका वो प्रेजेंटेशन आप लोग लाइव बना सकते हो, ऐसा आप लोग बता सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स वीडियो एंड एनिमेशन। द term video refers to the sequence of natural scenes captured using वीडियो डिवाइस। किसी भी वीडियो डिवाइस के अंदर हम लोग नेचुरल सीन को कैप्चर करते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, वीडियो बोलते हो, ठीक है। वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, वेब कैमरा हो सकता है, डिजिटल कैमरा हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड द एनिमेशन इज़ अ विजुअल चेंज ओवर टाइम। मीन्स टाइम के रिगार्डिंग वहाँ पे चेंज होता रहता है, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलोगे, एनिमेशन बोलोगे। इट इज़ अ विजुअल चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एनिमेशन है, वो एनिमेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एनिमेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. It is known as
two-dimensional, we can say that 2D animation, or second one is 3-dimensional, we can also say that 3D animation. Animation can be divided into two parts. In 2D animation, the visual change occur only x and y axis, and in 3D animation the visual change occur in 3-dimensional x, y and z. The some examples of 2D animation software, ये जो 2-डायमेंशनल पर वर्क करते हैं ऐसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है माइक्रोमीडिया फ्लैश, आप लोगों ने शायद से सुना होगा ये फ्लैश के बारे में, सिनफिक स्टूडियो एंड थर्ड वन इज़ योर पेंसिल। ये आपके 2-डायमेंशनल पे वर्क करने वाले एनिमेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। और 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है आपका माया, ब्लेंडर एंड 3D मैक्स। इसमें से अब आप लोगों का सेकंड चैप्टर जो आगे बढ़ेगा सेकंड चैप्टर से, वहाँ पे हम लोग ये 2-डायमेंशनल एनिमेशन सॉफ्टवेयर सिनफिक स्टूडियो के बारे में बात करेंगे। तो एनिमेशन के ये कुछ एग्जाम्पल्स है 2-डायमेंशनल के और 3-डायमेंशनल के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब इसके वीडियो फाइल के भी एक्सटेंशंस हैं, जो एक्सटेंशन आपको बुक के अंदर दिए गए हैं वो आपको अच्छे से याद रख के समझने हैं। फर्स्ट ऑडियो वीडियो इंटरव्यू फाइल के लिए रहेगा .avi, विंडोज़ मीडिया फॉर्मेट फाइल के लिए रहेगा .wmv, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के लिए रहेगा .mpg या तो .mpeg। नेक्स्ट क्विक टाइम फॉर्मेट फाइल का रहेगा .mov। नेक्स्ट रियल वीडियो फॉर्मेट फाइल का रहेगा .rm या तो .ram। एडोब फ्लैश शॉकवेव फाइल का रहेगा .swf या तो FLV। और MPEG-4 वीडियो फाइल का रहेगा MP4। तो ये आपके वीडियो फाइल के एक्सटेंशन हैं। तो ये आपका टॉपिक मल्टीमीडिया के 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का था। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया गया है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट्स। इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, या तो इंटरैक्शन मतलब क्या। तो जब आप लोग कोई वीडियो देखते हो या तो फिर किसी भी चीज़ के एनिमेशन को देखते हो तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यूज़र किसी चीज़ को बार बार देखना चाहे या तो यूज़र किसी प्रेजेंटेशन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करना चाहे, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए आपको कुछ बटन्स मिलने चाहिए। जैसे आप लोग अभी देखते हो तो फॉरवर्ड, नेक्स्ट ऐसे बटन आपको मिलते हैं, प्रीवियस। फिर आप लोगों को वहाँ पे कुछ चीज़ को आपको स्किप करना है तो वहाँ पे भी एक बटन आपको मिलता है, तो वो आपके हाइपरलिंक या तो नेविगेशन उस चीज़ के अंदर दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए। इन द अर्लियर इंटरनेट मीडिया ब्राउज़र सपोर्ट ओनली वन मीडिया एलिमेंट। जो आगे आपके इंटरनेट के ब्राउज़र होते थे वो ओनली वन मीडिया एलिमेंट सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज़ टेक्स्ट। And text was also limited to a single font or color. Now all the media elements described earlier now support the latest internet browser and in the different ways. So the some media elements can be handled inline and some media elements required plugin. ये interaction के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर अभी हाल में जो देखने को मिलते हैं वो अब ये चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो सम सॉफ्टवेयर हैंडल इनलाइन, मतलब वो इनलाइन ही हैंडल हो जाते हैं, एंड सम रिक्वायर्ड प्लगइन। सो द प्लगइन क्या है, तो प्लगइन आर एक्स्ट्रा हेल्पर प्रोग्राम्स।
क्या है? प्लगइन्स आर एक्स्ट्रा हेल्पर प्रोग्राम दैट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड यूज एज अ पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र। वो इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं और उसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड द इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट्स आर, जो इनलाइन है वो इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट है, वो इनलाइन मीडिया objects are specified inside the programs using the tag inline media ऑब्जेक्ट, इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ multimedia. Generally, multimedia is classified into two parts. First one is interactive and second one is non-interactive. Interactive and non-interactive. In interactive multimedia, the sequence and timing of media elements can be controlled by the user. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर मल्टीमीडिया CD, ठीक है, द यूज़र कैन हैव द different musical instruments to play and the user can also select the favorite song which the user want to play. ठीक है, तो वहाँ पे जो मीडिया का एलिमेंट है वहाँ पे इंटरैक्टिव में यूज़र के ऊपर उसके टाइमिंग और उसके सीक्वेंस को प्रेजेंट करने का कंट्रोल रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, इन नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया द यूज़र सिंपली वॉचेस द मीडिया एज इट प्लेज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। यूज़र को सिंपली वो मीडिया को वॉच करना पड़ता है। यूज़र हैज़ नो कंट्रोल ओवर द फ्लो, मतलब उसके फ्लो के ऊपर उसका यूज़र का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो यूज़र को या तो फिर कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन हो रहा है या तो फिर कोई मल्टीमीडिया का डेमो चल रहा है, तो यूज़र को सिंपली उसको देखना हो तो उसे देख ही सकते हो। उसके अंदर उसके फ्लो के ऊपर यूज़र का कोई भी वहाँ पे ये कंट्रोल नहीं रहता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं नॉन इंटरैक्टिव। नाउ next one is again topic like another classification of multimedia based on its application, based on its application। अब इसकी एप्लीकेशन के बेस पे अगेन वो मल्टीमीडिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो है आपका एंटरटेनमेंट एंड एजुटेनमेंट। मीन्स ये एंटरटेनमेंट मतलब आप लोग आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो मल्टीमीडिया का यूज़ करते हो, सच एज आप लोग मूवी देखने के लिए यूज़ करते हो या तो फिर गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हो, वो हो गया एंटरटेनमेंट पर्पस। एंड द एजुटेनमेंट मीन्स जैसे हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया एजुटेनमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव। बट if we talk about based on its application, then it is divided into two part, entertainment and edutainment. Now the next topic is small topic, usage of multimedia। इसके सिर्फ यूजेज आपको उसके जो नेम से वही आपको यूसेज के अंदर ये रिमेंबर करना है। यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया, फर्स्ट यूसेज है मल्टीमीडिया का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे हम लोग अभी एजुकेशन देने के लिए हम लोग ये मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर मल्टीमीडिया का ग्रेट इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एजुकेशन देने के लिए आप लोग मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हो। वो आप लोगों को एक, इट इज़ वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो वी कैन से दैट इट इज़ कॉल्ड CBT, means computer based
ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपका हुआ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए, जहाँ पे आप लोग अभी एजुकेशन के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, लाइव वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं वैसा। तो ये हो गया आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट उसका यूजेज है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग ये मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो या तो फिर किसी चीज़ का आप प्रमोशन मतलब किसी प्रोडक्ट का प्रमोटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आप लोग मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन है आपका एंटरटेनमेंट, मतलब आप लोग आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए वहाँ पे लोग यूज़ करते हो, तो वहाँ पे वो क्या होगा, मल्टीमीडिया का यूजेज होगा एंटरटेनमेंट के लिए। एंड द लास्ट वन है जर्नलिज्म। वहाँ पे जर्नलिज्म पर्पस के लिए भी मल्टीमीडिया का यूज़ हो सकता है। मीन्स जर्नलिज्म के अंदर आपको देखते हो तो देर आर मैनी मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर दैट are published, and today we can say not only text in newspaper but we can also see the photographs in the newspaper, ठीक है। and today we are see their live newspapers and e-magazine, e-newspapers related to particular news. So these are the all the usage of multimedia. The last topic of this chapter, that is stages in मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। अगर आपको कोई मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन क्रिएट करने हैं तो उसके स्टेजेस क्या है, वो स्टेजेस के सिर्फ नेम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। वो स्टेजेस के सिर्फ आपको नेम्स अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये स्टेजेस के अंदर आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा रिसर्च एंड एनालिसिस। स्टेजेस के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिसर्च एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको कौन से मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन बनाना है उसका आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बाद में उसके ऊपर आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन रहेगा स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग। स्क्रिप्टिंग, जैसे हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आपके मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, उसकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि इसके अंदर आप लोग क्या यूज़ करोगे, क्या बनाओगे, ये सारी चीज़ ये सेकंड स्टेप के अंदर आएगी। थर्ड वन है आपका स्टोरी बोर्डिंग। तो ये स्टोरी बोर्डिंग के अंदर आप लोगों को वो सारी चीज़, वो सारे फ्लो चार्ट स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखेंगे, कौन सी स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर कौन सी प्लेस पे उसको आप लोग रखोगे, ये सारी चीज़ आप लोग ये स्टोरी बोर्डिंग के अंदर डिसाइड करोगे। फोर्थ स्टेप है आपका कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। मीन्स आप लोग उस चीज़ के रिलेटेड डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स का कलेक्शन तैयार कर पाओगे इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोग्रामिंग। मीन्स उस चीज़ के अंदर अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करना हो, ठीक है, तो वो आप लोग प्रोग्रामिंग की उसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस मिलते हैं ये प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो वो आपके ये प्रोग्रामिंग के स्टेज में आएगा। और इसका लास्ट स्टेज है टेस्टिंग। सब कुछ हो जाने के बाद उसे आपको फाइनल स्टेज के अंदर उसे आपको चेक करना है कि ऑल द मीडिया एलिमेंट्स आर वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स और नॉट, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया का लास्ट स्टेज है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द स्टेप्स, ऑल द स्टेजेस इन मल्टीमीडिया। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है और लास्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। ओके, पीछे एक्सरसाइज के अंदर पीछे दिए गए MCQs को आपको ट्राई करना है, ठीक है। बाद में हम लोग इस MCQ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर सिनफिक स्टूडियो के बारे में बात करेंगे।
Thank you.